तेलंगाना में इंतखाबात करवाने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के चैलेंज को कबूल करते हुए रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट को तहलील कर दे तो टीआरएस असम्बली चुनाव के लिए तैयार है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को अवाम की फलाह बहबूद का इतना ख्याल अगर होता तो वो गुजरात में गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाती। कबल अज़ीम वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री ने वज़ीर इमारत व शूरा प्रशांत रेड्डी के हमरा सनतनगर असम्बली हल्के के बंडी मैसम्मा इलाके में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। प्रशांत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मुल्क की सारी दौलत अंबानी और अदानी के जेब में डालने का इल्ज़ाम आयद किया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने रायदुर्ग में हाईटेक सिटी के करीब रियल कंसल्टेंसी कॉलरीज इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी कंपनी और सोरोफाई लैब का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों का मरकज़ बनता जा रहा है। हुकूमत ऐसी कंपनियों के क़याम के लिए हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है। 7 साल कबल सिर्फ 2 मिलियन मुरब्बा गज जगह पर इदारे क़याम किए गए थे। अब 11 मिलियन मुरब्बा गज पर दफातर और इदारे क़ायम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम खानगी शोबे की कंपनियों के क़याम, सरमायाकारी और रोज़गार पैदा करने पर तवज्जो दे रहे हैं। सोरोफाई का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। वो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के लिए पूरी दुनिया में एक मोतबर नाम है। Teenagers at home, so I know. The other thing I also wanted to quickly add, the story of Hyderabad and how it has been shaping up in the last 8 years. I can tell you 2 things. One, when we went up today, we also inaugurated right next to your office another very interesting company called Colliers. They are into property management, real estate, etc. So the gentleman who runs Colliers India now, his name is Ramesh Nair. He was mentioning right before this event, there was a time back in 2012 and 13 when you could not lease out more than 2 million square feet in Hyderabad. But last year, it was 11 million square feet. So that goes to show you how quickly and how strongly Hyderabad has emerged. Now, what just was mentioned by Dustin, about 7 years ago, you said there was one person, right, in Ameerpet, in one person in Ameerpet. And today you are 220 plus. That is exactly how Hyderabad has been growing also. Not just in one area, but I think across in many, many sectors, not just in information technology, life sciences, aerospace, defense, I can go on. All of this, of course, has had a tremendous impact on the urban infrastructure, and as a government, our job is to create more and more infrastructure so that we continue to keep pace with the rapid growth of the industry, rapid growth of the private sector in our town. So I thank Surefy, of course. I was just also checking with Dustin on how the name came about. He said, I'm very sure about my company's growth, so therefore I called it Surefy. So fantastic name, I think, and good luck. Good luck. And once again, I have to compliment all of you for dressing up so well, for actually attending in such large numbers along with your family. Good luck and all the very best. And I do hope that you will become a unicorn, $1 billion company at some point in time in the future. Thank you. इब्राहिमपट्टनम के रुकन असम्बली मचिनेनी किशन रेड्डी और ZPTC मेंबर महिपाल ने रयोपॉल मौजे में माना बस्ती माना बड़ी प्रोग्राम में शिरकत की और कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना है। उन्होंने बताया कि इब्राहिमपट्टनम के तमाम स्कूलों की इमारतों को रंगो रोगन किया गया है। इब्राहिमपट्टनम असम्बली हल्के में 9 करोड़ 30 लाख रुपए से स्कूलों को तरक्की दी जा रही है। ఆ స్కూళ్ళలో ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ స్కూల్స్ కానీ హై స్కూల్స్ కానీ డబ్బులు కేటాయించి మినిమం రూమ్స్ కానీ అదేవిధంగా 12 ఇప్పుడు చెప్పిన విధానంగా బెంచీలు కానీ కుర్చీలు కానీ మౌలిక సదుపాయాలు అదేవిధంగా సైన్స్ రూమ్స్ కానీ డిజిటల్ క్లాసెస్ కానీ అన్నిటికీ కేటాయించాలని ఒక ఆలోచన పెట్టుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఇవాళ రాయపోలకు 1,21,00,000 ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది మొదటి నుంచి కూడా ఒక మంచి స్కూల్గా పేరుగాంచినటువంటి నియోజకవర్గంలో ఒక స్కూల్ హై స్కూల్ రాయపూల్ స్కూల్ అని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. గతంలో చూసాం మేము ఎన్నోసార్లు రాయపూల్ స్కూల్ అంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్గా ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు అదేవిధంగా ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు అందరూ కూడా ఒక కమిట్మెంట్ తోటి ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి సందర్భం. అందుకే రాయపూల్లో 10th క్లాస్లో మంచి మార్క్స్ రావడం జరుగుతూ ఉంది.
అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కూడా బాగా చదువుకొని ముందుకు పోతున్నటువంటి సందర్భం, కాంపిటేటివ్లో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఈ స్కూల్ కూడా మొదట రావడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తూ ఉన్నాం. నేను శాసనసభ్యుడిగా అయినప్పుడు మొదట ఈ యొక్క స్కూళ్ళలో తిరగాలని చెప్పేసి నేను మొదట ఇదే గ్రామానికి రావడం జరిగింది అనుకుంటాను. కౌన్సిల్ మెంబర్ గారు మీరందరూ కూడా చూడొచ్చు. అయితే ఇక్కడ స్కూల్ లేనటువంటి సందర్భాల్లో చెట్ల కింద కూర్చొని చదువుతూ ఉన్నారు. ఆనాడు ఇమీడియట్గా శాంక్షన్ ఆ బిల్డింగ్ కూడా ఇప్పించడం కూడా జరిగిందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మీకు అందరికీ కూడా నేను మనవి చేసుకుంటా ఉన్నాను. మౌలిక సదుపాయాలు లేని పిల్లలకు వాస్తవానికి కూర్చొని కనీసం ఆ 8 గంటలు కూర్చుంటారు. ఆ స్కూల్లో ప్రశాంత వాతావరణం కల్పించినప్పుడే వాళ్ళ విద్య వాళ్ళకు అభ్యర్థిస్తుంది. ఖచ్చితంగా హెడ్ మాస్టర్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ అందరూ కూడా వారి యొక్క విధులు కానీ నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు 100% వాళ్ళు సక్సెస్ కావాలని ఒక తపనతోటి టీచర్స్ బాగా పనిచేస్తున్నప్పుడు మరి వాళ్ళకి సౌకర్యాలు కల్పించకపోతే ఇబ్బందిగా ఉంటూ అక్కడ ఇంటి దగ్గర సరైన సౌకర్యాలు లేకుండా ఇక్కడ స్కూల్లో లేకపోతే ఇబ్బంది పాలవుతారు. కాబట్టి ఇవాళ ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసి ఎక్కువ నిధులు ఇక్కడ కేటాయించడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. స్కూళ్ళలో అన్ని వసతులు కల్పించాలి. ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి సంబంధించిన దానికన్నా బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ ఇంగ్లీష్ మీడియం అన్ని కూడా పెట్టడం, పిల్లలకు అన్ని వసతులు కల్పించడం కూడా జరుగుతూ ఉందని చెప్పేసి కూడా जड़ेमटला के कृष्णा नगर में ज़ालाबारी और बारिश से पीर की सुबह 15 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं के सबब कई मकानात की छतें भी उड़ गईं। 2 बरकी खंभे भी जड़ से उखड़े पाए गए। सराराम के कारपोरेटर सत्यनारायण ने जेएसएमसी के काम को मुतला किया और डीआरएफ की टीमों को तलब करते हुए राहत का काम शुरू करवाया। तेलंगाना होलसेल फ्रूट मार्केट कमीशन एजेंट एसोसिएशन ने सदनशीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह खान से मुलाकात की और उनके इंतखाब पर मुबारकबाद दी। एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मुनीर ने बताया कि उन्होंने सदनशीन वक्फ बोर्ड को एक याददाश्त भी पेश की और वकाफी अराजी पर आरजी फ्रूट मार्केट के क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की अपील की। शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुनीरुद्दीन है। मैं एक फ्रूट मर्चेंट हूँ और मेरी दुकान का नाम एम जलाल मियां फैमिली ट्रस्ट और ZMS फ्रूट कंपनी है। पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद साथ ही साथ जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसकी कोशिश की वजह से और जिसकी बार बार असेंबली में नुमाइंदगी करने की तरफ से आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हज हाउस आए हैं आपकी हिदायत से कि वक्फ लैंड जो है 16 एकड़ मामड़पल्ली पहाड़ी शरीफ की, तो उस पर हम मार्केट क़ायम करना चाह रहे हैं। क्योंकि बाटा सिंगाराम जो मार्केट क़ायम हो गई है वहाँ पे हम किसी भी तरीके से हम सहूलत नहीं है हमारे वहाँ पे काम करने की और हमारा नुकसान हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन को महंगाई बहुत बढ़ जा रही है। तो वो हिसाब से हम सब जो है ना ये देख सकते हैं आप होलसेल फ्रूट मार्केट एसोसिएशन की तरफ से हम सब लोग जो है ना एकजुट होके हम ये मार्केट से हम मामड़ीपल्ली जाने के लिए तैयार है। और मैं चेयरमैन साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मसीहुल्लाह साहब को कि आप वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन बने। हम बहुत जो है सो हम ताउन चाहते हैं आपकी तरफ से, बहुत दिलचस्पी से आप हमारा काम को अंजाम दीजिए ताकि हम हमारी मार्केट एक क़ायम कर सकें। और हम खुद ये कहना चाहते हैं कि हम खुद इंशाअल्लाह वो मार्केट को हिंदुस्तान की सबसे नंबर 1 मार्केट बनाएंगे और वो ओल्ड सिटी से नज़दीक है, ख़रीदार को भी सहूलत है वहाँ पे आके काम करने के लिए और किसान को भी जो सुना बहुत सहूलत है वहाँ पे, तो अच्छा फ्रूट्स का अच्छा रेट भी आएगा और इंशाअल्लाह कारोबार में जो सुना इजाफा भी होएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। मलरदेव पुलिस एक कमसीन लड़की के गवाह का मामला दर्ज करते हुए मुलजिम अफरोज खान की तलाश शुरू कर चुकी है। अफरोज इस लड़की का बहनोई बताया जाता है। पुलिस का कहना है कि अफरोज की 14 साल कबल फहमीदा बेगम से शादी हुई थी और उसे 3 बेटियां भी हैं। लड़का न होने पर वो अपनी बीवी को हिरासा करता था और ससुराल वालों से रकम का मुतालबा करता था। चुनांचे ससुराल वालों ने उसके मुतालबात की कई मरतबा तकमील भी की। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फहमीदा है। मैं अफरोज खान की बीवी हूँ। मेरी शादी होके 14 साल हो गया। मेरे को 3 बेटियां हैं। एक बच्ची 14 साल की है, एक बच्ची जैसो एक 8 साल की है, एक बच्ची जैसो 10 साल की है।
मेरे को बेटा होना बोल के 5 साल से टॉर्चर कर रहे। और जैसे हमारे चाचा की लड़की को ले लेके चले गए उन्होंने, और जो भी कारोबार में पूरा मेरे घर से ले जाके लगाए उन्होंने, पैसा भी सब पूरा बर्बाद करके चले गए। 2 गाड़ियां हैं, सब है उनके भाई के पास है, उनका भाई चाहे जो भी है पूरा सपोर्ट उनके भाई का है। उनके भाई की बात सुन के और उन्होंने जब मिलेंगे तो इन्हों भी मिलेंगे। और मैं ये छोटे छोटे बच्चियों को लेके कैसा जीऊँ, मेरे को बहुत तकलीफ़ दे रहे, उन्होंने बहुत परेशान कर रहे। और जैसे गाड़ियाँ, पैसे, उनके अब्बा का इनोवा की पैसे भी उनके पास है। मैं सोना वोना रखा के कारोबार को भी पैसे दी। मैं रसीदा बताओ बोले तो बताती, मेरे को हर चीज़ से पैदल करके चले गए। और देखो देखो बोल के मेरे ख़ानदान के मेरे चिच्चा की बच्ची को ले लेके चले गए। बहुत परेशानी में हूँ मैं, मेरे को बहुत सपोर्ट होना भाई, मेरी मदद होना भाई। मैं PS को जाके कंप्लेंट करी तो SI मेरी नहीं सुन रहे। क्या नाम क्या है? अली भाई। और ये सब बस कुछ बोलते हो ये मेरे हस्बैंड है, इन्होंने बहुत क्या बोलूं, बगल लोग ले ले नहीं ये ले ये उनको बोलने दो। रियासती हुकूमत के मुशीर बराए खिलत तैमूर AK खान ने मेहदीपट्टनम में एक इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया, जहां टिमरिस जूनियर कॉलेज गोशा महल के लड़के और लड़कियां इम्तिहानात में शिरकत कर रही हैं। उन्होंने इम्तिहान में शरीक होने वाले उम्मीदवारों से बातचीत भी की। AK खान ने बताया कि रियासती हुकूमत टिमरिस की मियार तालीम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो बग़ैर किसी तनाव के इम्तिहानात में शिरकत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त तालीम पर दें। रियासत भर में इंटरमीडिएट के एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं, पहले साल और दूसरे साल दोनों के लिए। और टिमरिस के 204 इदारे यानी कि जूनियर कॉलेजेस जो हैं वहाँ के सारे तलबा, लड़के लड़कियाँ सब एग्ज़ामिनेशन ले रहे हैं। और तकरीबन सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और सिर्फ एक पेपर बाकी है, या ह्यूमैनिटीज़ का हो या साइंसेस का। तो एक अच्छी बात यह है कि जहाँ भी जिस एग्ज़ामिनेशन सेंटर को भी जाके देखें, वहाँ हमारे तलबा यही बोल रहे हैं कि उनकी अच्छी तरबियत हुई थी और एग्ज़ाम्स अच्छा लिखे हैं और अच्छे मार्क्स आने का भी इम्कानात हैं और इनका एक्सपेक्टेशन भी है। अब इसके बाद में भी आगे पढ़ना चाह रहे हैं ये, और डिग्री करने वाले हैं या MSET या नीट एग्ज़ाम्स लेने के लिए भी इनकी तैयारी तरबियत हुई है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे तलबा हमारे टिमरिस से जो बाहर निकल के आ रहे हैं ये फ्री सीट्स हासिल करने में कामयाब होंगे। और टिमरिस के साथ और उनके जो टीचिंग स्टाफ है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इनके साथ तो इनका राब्ता बना रहेगा, इनका गाइडेंस हमेशा मिलती रहेगी। और वेकेशंस में भी काफ़ी तैयारी करने की एक अहद के साथ ये बच्चे बाहर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह तैयारी करके जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर में जल्द से जल्द फिर आएंगे हमारे इदारों में। और सेकेंड ईयर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इनकी ज़िंदगी में, उसको अच्छी तरह से फिर कंप्लीट करेंगे। और जो सेकेंड ईयर कंप्लीट कर रहे हैं उनको हम लोग टिमरिस के जानिब से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इनको ग्रेजुएशन में जाने के लिए या प्रोफेशनल कोर्सेस में जाने के लिए उनकी तैयारी में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इनको जितना भी सपोर्ट करना है, ताउन देना है, वो ज़रूर देंगे इनको। बैंक ऑफ बड़ौदा मनसलीपुरम ब्रांच के कैशियर प्रवीण कुमार ने जो बैंक से 22 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गया था, खुद को हयातनगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। पुलिस ने बाध्यताओं से अदालत में पेश करते हुए 30 मई तक अदालती तहवील में भेज दिया। प्रवीण का कहना है कि उसने बैंक की रकम का सरखा नहीं किया। बैंक ऑफ बड़ौदा में धांधलियां हुई हैं और इसको छुपाने के लिए उसको मुल्जिम बनाया गया है। प्रवीण ने कहा कि वो बहुत जल्द बैंक की धांधलियों को मंजर-ए-आम पर लाएगा। यूक्रेन में ज़ेर तालीम मेडिकल तलबा ने चेन्नई में एहतजाजी मुजाहरा किया और रियासती और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें हिंदुस्तान में तालीम जारी रखने की इजाज़त दी जाए। जो तलबा 5 साल मुकम्मल कर चुके हैं उन्हें इंटर्नशिप करने की भी इजाज़त दी जाए। यूक्रेन MBBS स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन के सदर MR गणेशेखरन ने बताया कि तमिलनाडु के 1816 मेडिकल तलबा का मुस्तकबिल खतरे में है।
एसोसिएशन ने मदुराई, तिरुपति, कोयम्बतूर और सेलम में ऐसे मुजाहरे भी करने का ऐलान किया है। दामाद ने किया सास पर हमला। 2 साल से मजीद जहेज का मुतालबा करते हुए अपनी बीवी को हरासा कर रहा था। कल शाम दामाद उमर खान अपने भाई के साथ ससुराल आकर अपनी सास पर हमला किया। इससे सास के हाथ की हड्डी टूट गई। चादरघाट पुलिस केस दर्ज करते हुए उमर खान की तलाश शुरू कर दी। वालेकुम। हमारे दामाद आज हमारे घर पे आके हमला करे। उनको 2 साल हो गए थे उनकी शादी होके। हर वक्त 1 लाख दो, 2 लाख दो बोल के बहुत परेशान कर रहे थे। मैं तकरीबन मदद के लिए चारों तरफ गई मैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी मेरी बच्ची को एक बच्चा भी है छोटा 5 महीने का। अब उन्हें बहुत सता रहे थे। उनके घर से मैं सामान ला ली, भाई आप नहीं कमाते ना, जान दो मेरी बच्ची मेरे पास रहने दो। कल सामान लेके आई। आज मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी, नमाज में खटका आया। मेरा बच्चा दरवाज़ा खोला, खोलते चुनो उनके भाई अंदर घुसे। मेरे को राड से पहले सर पे धनाधन मारे। जानी माज पे ही बैठी हुई थी हमारे दामाद उमर खान, और उनके भाई मेरे पेट में लात मारते गए। और उन्होंने उमर खान मेरे चूल्हे में से जाके चाकू निकाल के लेके आके अब तक ख़त्म। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 17 साल का, ढकल रहा। मेरी बच्ची के गोद में 6 महीने का बच्चा, उन्हें ढकल रही। हरगिज़ नहीं सुन रहे थे। मेरी जान लेने की प्लानिंग में आए थे। उनको ये चाहिए कि मैं और 2 लाख रुपए उनको दूं, जो मेरी हैसियत नहीं है, मैं नहीं दे सकती उनको इतने पैसे। ना उन्होंने मेरी बच्ची को छोड़ी ना कुछ। आज तो मेरी जान लेने आ गए। मैं बहुत परेशानी में हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करिए। हाँ, मैं कंप्लेंट दी चादरघाट में भी, या चादरघाट पीएस के बाहर ही ठहरे हुई हूँ मैं। इमरजेंसी हो गया आपका? हाँ हो गया। उस्मानिया को जाके आए। हाथ मेरा पूरा हाथ की हड्डी टूट गई बोल के प्लास्टर डाल दिए मेरे हाथ में। मैं शुगर पेशेंट हूँ। मैं मकान मेरा यहाँ पे मुस्लिम हॉस्पिटल के सामने गली में है, अंदर घुस उस्मानपुरे में। प्लीज़ आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी मदद करिए। ऐसा ना हो कि फिर ऐसी बच्चियों को छोड़े और उनके माँ बाप को अंदर घुस के मारे। ये कब तक गुंडागर्दी रहेंगी? ये तमाशा होगा? बोलो। क्या मुतालिबा है आपका? पुलिस से अच्छी उम्मीद है, मदद का मुतालबा है मेरा। पूरा एमएलए अहमद पाशा खादरी ने अपने हल्के के लिए मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया। आवाम से मिलते हुए उन्होंने तफसीलात हासिल की। इनके हमरा बरक़ी, बल्दी, आबरसानी के ओहदेदार मौजूद थे। आवाम की शिकायत पर अहमद पाशा खादरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि नामुकम्मिल कामों को मुकम्मिल करें। बाज़ार इलाके में आज बल्दी, बरक़ी, आबरसानी ओहदेदारों के साथ दौरा किया गया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कॉर्पोरेटर वासुद्दीन साहब और तमाम इत्तेहाद के अहदेदारों ने दौरा किए। ये अजमत नगर से दौरे का आगाज़ हुआ। वहाँ पर एक घर के सामने काफ़ी गड़ा बढ़ गया, रोड बढ़ गई। उसको रिपेयर करके नई रोड डालना और नई पानी की लाइनें उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए बताया। वहाँ से इमाम बाड़े के पास दौरा किया गया, जहाँ पे पानी की किल्लत है। कुछ गलियों में पानी नहीं आ रहा है, कुछ गलियों में पानी की पोल्यूशन की शिकायत है, वो नोट करा दिया गया। वहाँ से निकल के अशरफुल मदारस का दौरा किया। वहाँ पर परसों बारिश में और बारिश के बाद भी 2 गलियाँ थे जहाँ पे ड्रेनेज की लाइन फुल होने के बाद घरों में पानी आ जाता। उसके लिए एक नया ड्रेनेज की प्रपोजल को नोट कराए। वो प्रपोजल बनने के बाद, एस्टीमेट बनने के बाद सैंक्शन होगा, टेंडर होगा, उसका काम का आगाज़ हुआ तो घर वालों को इससे राहत मिलेगी। फिर यहाँ मदीना नगर, इसम नगर, धोबी घाट के लिए में यहाँ के ब्रिज का काम बताया गया। इस ब्रिज के बाजू एक मेजर ड्रेनेज की लाइन डालना है, तकरीबन 400 फीट की है। उसका एस्टीमेट फौरी बनाने के लिए और बारिश की मोरी के लिए भी 2 एस्टीमेट तैयार करने के लिए नोट कराया गया। सदर कोविंद जमैका पहुंचे। गवर्नर जनरल और वजीर आज़म से बातचीत के लिए सदर रामनाथ कोविंद एक सरकारी दौरे पर जमैका पहुंचे हैं, जो किसी भी हिंदुस्तानी सदर के तरफ से कैरेबियन मुल्क का पहला दौरा है, जिसके दौरान वो अपने हम मनसब गवर्नर जनरल पैट्रिक एलन और वजीर आज़म एंड्रयू हॉलिन्स के साथ कसीरुल जहती तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे।
दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात। सदर कोविंद अपनी अहलिया सविता कोविंद के साथ इतवार को अपने 2 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले पर यहां पहुंचे। सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस भी ले जाएंगे। जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन और वज़ीर आज़म एंड्रयू हॉलिन्स ने हवाई अड्डे पर सदर कोविंद का इस्तकबाल किया। सदर के दफ्तर ने ट्वीट किया, सदारती दौरा दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 60वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है। सदर मुमलिकत को इनकी आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म हॉलिन्स ने कहा कि वो कोविंद और इनकी अहलिया का जमैका में पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए बेहद खुश थे।